Hello dear students, in this video we are going to do applications of derivative. Applications of derivative practical questions. Here surface area of spherical balloon is increasing at rate 2 centimeters square per second. At what rate the volume of balloon is increasing when radius of balloon is 6 centimeter. So if we consider balloon as what sphere of radius r, then surface area of balloon will be what? Surface area of balloon will be that is capital A will be equal to what? 4 pi r square. What is given? Surface area of spherical balloon is increasing at rate 2 centimeters square per second. So we find derivative of this. इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dA by dt, because rate of change. So rate of change is with respect to derivative, with respect to t. So dA by dt will be equal to what? dA by dr, chain rule of derivative, dr by dt. What will be dA by dr then? It is 4 pi derivative of r square. What will be derivative of r square? It is 2r into dr by dt. So dA by dt will be equal to what? dA by dt will be 8 pi r into dr by dt into dr by dt. What is given? This is equal to how much? See, the surface area of spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeters square per second. So this is given. How much it is? It is 2 centimeters square per second. This is what given. So we can reduce it. Here we can reduce this 2 and it is equal to 4. Therefore we are getting here r dr by dt, that is equal to what? r dr by dt will be equal to, राइट हैंड साइड में क्या है 1 अपॉन यहाँ पे 4 पाई आएगा अपॉन 4 पाई. सो r dr by dt is equal to what? 1 upon 4 pi. So you are getting this r dr by dt is 1 upon 4 pi. Now what is to be find here? At what rate volume of balloon, okay, is increasing when radius of balloon is 6 centimeter. Now volume of balloon, so V is equal to what? 4 upon 3. We consider it as a sphere. 4 upon 3 pi r cube. Okay, differentiate it with respect to t. dV by dt will be equal to what? dV by dt is dV by dr into dr by dt into what? dr by dt. So what is this dV by dr? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4 by 3 पाई कांस्टेंट है और r क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3r स्क्वायर इंटू दिस dr by dt. ओके, r क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3r स्क्वायर, ओके, इंटू dr by dt. अब यहाँ पे 3 और ये 3 कैंसिल होगा एंड we will get here dV by dt is equal to what? dV by dt is equal to 4 pi r square into dr by dt. So this we can write as 4 pi into r into dr by dt, because this r into dr by dt we are having from equation 1.
So we substitute here from equation 1 r dr by dt is 1 upon 4 pi. Therefore dv by dt will be equal to क्या होगा, it is equal to 4 pi, ये r एक्स्ट्रा है r, और ये r into dr by dt is what? See, this r into dr by dt is 1 upon 4 pi. So that this 4 pi और ये 4 pi cancel होगा, and finally you are getting here dv by dt मतलब rate of change of volume, that is equal to what? Only r. And what is that? See, the radius of balloon is equal to what? 6 centimeter. It is given. So therefore dv by dt will be equal to 6. हाँ, now what will be the unit? तो इसका यूनिट क्या होगा? It will be 6 cubic units. Okay, per second. 6 cubic units per second will be the, okay, 6 cubic units per second. So that will be the answer here. So once again we will go through the question. So what is to find over here? Here we have to find volume of balloon increasing at what rate. Okay, so volume of balloon is increasing at what rate, that to find. So it is equal to what? 6 cubic centimeter per second. See, area, what is given here? Surface area of balloon or surface area of sphere will be 4 pi r square. इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t. तो पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r करो, तो ये होगा r स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2r, और ये 4 पाई कांस्टेंट है इंटू dr by dt. ओके, सो दिस dA by dt इज गिवन ऑलरेडी. इट इज इक्वल टू हाउ मच? 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड. तो इससे हमें मिलेगा dr by dt, r इंटू dr by dt हमने फाइंड किया, तो इट इज़ 1 अपॉन 4 पाई. फिर ये वॉल्यूम, ओके, सो वॉल्यूम इज व्हाट? 4/3 पाई आर क्यूब. इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू dv by dr इंटू dr by dt. सो इसका डेरिवेटिव होगा 3r स्क्वेयर, और 4/3 पाई कांस्टेंट है. So we are getting this after substituting r is equal to 6. So our answer is this, dv by dt is equal to what? 6 cubic unit per 6 cubic centimeter per second होगा. Next is the displacement of particle at time t is given by this. Displacement of particle, okay, here displacement of particle s is given as, कितना दिया है? 2t क्यूब. इजी क्वेश्चन है. 5t स्क्वेयर, 4t और -3, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय दिस. फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 14 फीट पर सेकंड स्क्वेयर. So to get acceleration you have to differentiate. ये displacement है, velocity will be equal to what? See here, velocity is equal to v is equal to ds by dt. Velocity is ds by dt and it is equal to, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा? 2 इंटू 3 t स्क्वेयर माइनस 5 कांस्टेंट. डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वेयर इज 2t प्लस 4 कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, और ये -3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा 0. देयरफॉर वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू ds by dt and it is equal to how much? 6t square 10t plus 4. हाँ, ये वेलोसिटी है. अभी एक्सेलरेशन यू हैव टू फाइंड. Here we find what? Acceleration a is equal to
डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी दैट इज dv बाय dt। तो इसका एक और बार डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t और ये 6 दैट इज 12t माइनस 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। हाँ, ये है एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज गिवन हियर, फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 14 feet per second। So you have to find here time t. What is time t when acceleration is equal to how much? 14 feet per second square. So equate it with 14, therefore 14 is equal to 12t minus 10, therefore it is, ये 10 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बी 24, ये आएगा 12t, देयरफॉर t इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 12 एंड इज इक्वल टू हाउ मच 2। हाँ, सो देयरफॉर व्हाट इज टाइम t, देयरफॉर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। Time t is equal to how much? 2 seconds. Once you are getting time, पहला क्वेश्चन क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 14। जब एक्सेलरेशन 14 है तो टाइम t कितना है? 2 seconds। ओके, देयरफॉर टाइम t इज इक्वल टू हाउ मच? 2 seconds। द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है एट दिस टाइम, देयरफॉर वेलोसिटी, what will be velocity at this time? Okay, at velocity at time t is equal to what? 2 seconds. So v is equal to, इस फॉर्मूला में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, वेलोसिटी 6t स्क्वायर, 6 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, माइनस 10 इंटू टी, टी इज वॉट 2 प्लस 4, तो कितना आ रहा है देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू, हाँ ये आएगा 24, 6 इंटू 4 आएगा ये, माइनस 20 आएगा और ये प्लस 4। सो देयरफॉर यू आर गेटिंग इट इज इक्वल टू, ये 4 और ये 4 8 आएगा, 8। नाउ एज इट इज वेलोसिटी, okay, so velocity we'll write as 8, okay, 8 feet per second, 8 feet per second। Then you have to find displacement at this time t, okay, so you have to find here displacement when time t is equal to what? 2 seconds, what will be the displacement? So displacement t is equal at t is equal to 2, s is equal to how much? Therefore s is equal to what? S is ये 2t cube, मतलब 2 into t cube, t cube is 2 cube, minus 5 into t square, t square is 2 square, plus 4 into 2 minus 3। So what answer you will get? This is equal to how much? Displacement s is equal to, हाँ ये 8 होगा, 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 20 आएगा और प्लस 8 माइनस 3। So how much it is equal to? It is equal to minus 4, that is plus 4, ये 1। Yes, therefore what is the displacement over here? Okay, displacement is equal to, s is equal to 1 feet, 1 feet, ये यूनिट है। हाँ, so first thing you have to get time t, time t is equal to 2 सेकेंड आया, वेलोसिटी फाइंड करना है एट दिस टाइम t, इट इज इक्वल टू 8 फीट पर सेकेंड, और लास्ट में आपको डिस्प्लेसमेंट s फाइंड करना है
that is equal to what? 1 feet. Next question is volume of spherical ball is increasing at rate 4 pi cubic centimeter per second. Find the rate at which radius and surface area are changing when volume is 288 pi cubic centimeter. हाँ, so what is given over here? हमें फाइंड करना है. सी द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल. तो स्फेरिकल बॉल वी विल कंसिडर एज स्फीयर. इसको हमें क्या कंसिडर करना है? स्फीयर. ओके, सो स्फेरिकल बॉल, so its volume will be what? So volume V is equals to 4 by 3 pi r cube. ये है वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग, मतलब रेट dV by dt. इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dV by dt, दैट इज dV by dr into dr by dt. What will be this? dV by dr. इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू r? 4 by 3 pi कांस्टेंट है. डेरिवेटिव ऑफ r क्यूब विल बी 3r स्क्वायर, और ये dr by dt आएगा. हाँ, ये 3 कैंसिल होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल आएगा. सो व्हाट इज गेटिंग हियर? dV by dt इज इक्वल टू 4 pi r square dr by dt. हाँ, दिस इज व्हाट वॉल्यूम. अब दिया क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस. तो ये दिया है, इट इज इक्वल टू 4 pi क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये दिया है, इट इज व्हाट गिवन. नाउ दिस 4 pi और ये 4 pi कैंसिल कर सकते हैं. देयरफॉर r square dr by dt that is equal to what? 1. so dr by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ये कितना आएगा? 1 अपॉन r स्क्वेयर आएगा. ओके, 1 अपॉन r स्क्वेयर आएगा. So what is you are getting? dr by dt is 1 upon r square. अब फाइंड क्या करना है? देखो, here we have to find what? Find rate at which radius of sphere. Find rate at which radius of, sorry, find rate at which radius and the surface area are changing when volume is what? 288 pi cubic centimeter. So volume V is given. What is given over here? हमें क्या दिया है? देखो, given वॉल्यूम दिया है. वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 4 by 3 pi r क्यूब. ये इसका वैल्यू दिया है 288 pi. दैट मीन्स व्हाट इज गिवन ओवर हियर? हाँ, ये पाई कैंसिल कर सकते हैं हम, और ये 4 से भी आप डिवाइड करो. देयरफॉर r क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? 288 इंटू, हमें r क्यूब फाइंड करना है यार. 288 अपॉन इंटू 3 अपॉन 4. तो ये 4 डिनोमिनेटर में आएगा, 3 न्यूमरेटर में आएगा, r क्यूब मिलेगा आपको. हाँ, लेट अस कैंसिल इट. इसको हम कैंसिल करते हैं, ये आएगा. ओके, 72. देयरफॉर r क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट? 72 इंटू 3, ये आएगा 6. ओके, 21. तो 216 is cube of what? Okay, it is r cube is equal to 6 का क्यूब होता है. ओके, 6 का क्यूब, that is 216 is cube of 6. ओके, हाँ.
So therefore what will be R? Therefore R will be equal to how much? 6 आएगा. You are getting R is equal to how much? 6. हाँ, so आपको R मिला है 6. फाइंड क्या करना है? फाइंड रेट एट विच द रेडियस, फाइंड रेट एट विच द रेडियस एंड सरफेस एरिया आर चेंजिंग. ओके, therefore radius is changing means what? dr by dt. तो ये dr by dt इस इक्वेशन से आपको मिलेगा. therefore dr by dt is equal to what? ये एक आंसर मिलेगा आपको 1/r square. 1/r square मतलब 6 square which is 1/ how much? 36. हाँ, अब ये रेडियस का यूनिट क्या होगा? इट इज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके, सो द रेडियस dr by dt will change or will increase. ओके, द रेडियस विल चेंज एट द रेट ऑफ, ये है ना dr by dt इज 1/r स्क्वायर. अब r आपको मिला है 6, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. dr by dt विल बी इक्वल टू 1/6 स्क्वायर, दैट इज 1/36. ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड. ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करना है. रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करना है. सो व्हाट इज द सरफेस एरिया? ओके, सरफेस एरिया विल बी व्हाट? सरफेस एरिया that is equal to A is equal to 4 pi r square. therefore dA by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया 4 pi. what is derivative of this? it is dA by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. so it is 4 pi r square का डेरिवेटिव 2r into dr by dt. so it is dA by dt is equal to what? dA by dt is equal to 8 pi r into dr by dt into what? dr by dt. हाँ, so what is dr by dt here? हमें dr by dt मिला है 1/r स्क्वायर मिला है. therefore dA by dt is equal to what? dA by dt is 8 pi r into dr by dt. so what is our dr by dt? it is 1/r square is from 1. so it is from 1. so dA by dt is equal to 8 pi r and dr by dt is what? 1/r square. this is from equation 1. हाँ, तो here ये एक r कैंसिल होगा. फाइनली यू आर गेटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया dA by dt is equal to 8 pi upon r. but what is our r? r है 6. so it will be equal to 8 pi upon r. r is equal to how much? 6. ये आएगा 4, रिड्यूस करके 4 pi upon 3 आएगा. हाँ, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस? तो इसका यूनिट आएगा, ये एरिया है, सरफेस एरिया है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड. स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड, ये होगा एरिया का यूनिट. so rate of change of area will be square centimeter per second 4 pi upon 3. yes, now let's do this next question. a wire of length, see here the next question, a wire of length A wire of length 120 centimeter is bent in the form of rectangle.
is bent in the form of rectangle. Find its dimension if the area of rectangle is maximum. Here see, it is bent into a rectangle. It is bent into a rectangle. And what is the, see, here is the wire. Look at this wire. ये wire of length how much? 120 centimeter. Now this wire is bent. See, a wire of length 120. See this wire. What is length of this wire? It is 120 centimeter. Okay, and it is bent into a rectangle. It is bent into a rectangle. So suppose its dimensions are like this. Length is x or breadth is what? Y. Find its dimension if area of rectangle is maximum. तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? Okay, इसका पेरीमीटर will be equal to 2 times of length plus breadth. ठीक है, and that is equal to 2 times of x plus y आएगा. हाँ, तो वायर ऑफ लेंथ इक्वल्स टू what? 120 सेंटीमीटर. लेकिन इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू नथिंग बट लेंथ ऑफ वायर. तो लेंथ ऑफ वायर कितना है? 120 सेंटीमीटर. देयरफॉर ये पेरीमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर. दैट इज इक्वल टू what? लेंथ ऑफ वायर. लेंथ ऑफ वायर. ओके, हाँ, एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच? 120. हाँ, सो देयरफॉर यू आर गेटिंग, ये 2 कैंसिल करेंगे हम, यहाँ पे आएगा 60. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच? 60. हाँ, यहाँ पर हम 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, बट वी आर यूजिंग व्हाट? ओनली 1 वेरिएबल. सो देयरफॉर यू कैन राइट y in terms of x, that is 60 minus x. 60 minus x. What will be the area? Therefore area capital A is equal to length into breadth is the area of rectangle. So length is what? X or breadth is y, मतलब x into y. Therefore area will be equal to x into y. What is y? 60 minus x. तो हमें एक रिलेशन मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा एरिया का. A will be equal to what? 60x minus x square, that is the A, area. इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. व्हाट इज द डेरिवेटिव? dA by dx इज इक्वल टू 60 आएगा इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 2x. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. नाउ हाँ, हियर फाइंड द डायमेंशंस इफ एरिया इज मैक्सिमम. तो मैक्सिमम मिनिमा के प्रॉब्लम्स हम जब सॉल्व करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करते हैं 0 से. एट मैक्सिमम एरिया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dA बाय dx ये 0 होता है. इससे आपको x का वैल्यू मिलेगा. व्हाट इज दिस dA बाय dx? इट इज 60 minus 2x विल बी इक्वल टू 0. देयरफॉर ये 2x राइट हैंड साइड में आएगा और 60 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस 30. देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच? 30 मिलेगा. अभी आंसर सफिशिएंट नहीं है, हमें डायमेंशंस फाइंड करना है व्हेन द एरिया इज मैक्सिमम. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, d स्क्वायर a बाय dx स्क्वायर फाइंड करना है. दैट इज d dx ऑफ dA बाय dx, दैट इज व्हाट? d dx ऑफ dA बाय dx. व्हाट इज अवर dA बाय dx? इट इज सी डेरिवेटिव ऑफ 60 minus
2x इज और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये। तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 60 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव भी 0 और -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, क्लियरली इट इज इक्वल टू -2। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए मैक्सिमम के लिए। देयरफॉर व्हाट डिड यू इन्फर, देयरफॉर a इज मैक्सिमम व्हेन, हमें डायमेंशंस फाइंड करना है, व्हेन x is equal to how much, here we are getting x is equal to how much, 30, when x is equal to what, 30, so when x is equal to 30 area is maximum, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रही है। अब यहाँ पे रिलेशन है हमारा x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 60। हाँ, यहाँ पर देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, मतलब y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स। देयरफॉर y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, x इज 30, तो y विल बी आल्सो इक्वल टू 30। देयरफॉर एरिया विल बी मैक्सिमम, इज मैक्सिमम व्हेन इट इज स्क्वायर ऑफ, when it is a दोनों ओके डायमेंशंस लेंथ और ब्रेथ सेम 30 आ रहा है, तो when it is a square of side 30 centimeter, okay, when it is a square of side 30 centimeter, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में, दिस इज द आंसर, दिस विल बी द आंसर। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमारे पास फंक्शन है, व्हाट इज दिस फंक्शन, लिसन, y is equal to or fx is equal to what, see we have this function, ये fx is equal to, here fx is equal to what, 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20, okay. So here we have to find maximum and minimum value of the function। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे हम। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर और ये 2, मतलब 6x स्क्वायर आएगा, माइनस 21 इंटू 2 दैट इज 42, ये x आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, और ये 36। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड करते हैं, f2 डैश ऑफ x, क्योंकि आगे रिक्वायर्ड है, दैट इज 12x माइनस 42, ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्या करना है, एट मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब एट एक्सट्रीम वैल्यू, मैक्सिमा और मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज डी, सॉरी it is f dash of x, first order derivative, f dash of x is equal to what, 0। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिवाइड थ्रू आउट इक्वेशन बाय 6, तो हमें 6 से इक्वेशन पूरा डिवाइड करने पर यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 आएगा इज इक्वल टू 0। सो व्हाट टू वैल्यूज ऑफ x यू आर गेटिंग, x माइनस 6 और x माइनस 1, ओके। 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे, ओके, 6 के फैक्टर्स आएंगे -6 और -1, तो -6 - 1 इज -7,
that is equal to what 0. Therefore you are getting x is equal to क्या 6 और x is equal to क्या 1. ये भी 0 और ये भी 0, तो 6 is equal to 1 और 6 is equal to 6, sorry x is equal to 6. So these are two values of x. हमें चेक करना है कि ये दो पॉइंट में से कौन से पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू यू आर गेटिंग और कौन से पॉइंट पर मिनिमम यू आर गेटिंग. तो ये हमारा f2 डैश ऑफ x है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो व्हाट इज f2 डैश ऑफ 1 यू आर गेटिंग. तो हमें f2 डैश ऑफ 1 क्या मिल रहा है, 12 इंटू 1 माइनस 42. ये आएगा 12 माइनस 42, इट इज माइनस 30. क्लियरली इट इज नेगेटिव है. तो ये टेस्ट है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉइंट पर क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमा. देयरफॉर f हैज मैक्सिमा एट, देयरफॉर f हैज मैक्सिमा एट व्हाट पॉइंट, x इज इक्वल टू 1. और हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है. ओके, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, दैट विल बी एट x इज इक्वल टू 1 मिलेगा. तो हमें f ऑफ 1 फाइंड करना होगा. हमारा fx क्या है, ये है fx 2x क्यूब, 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 21 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू एक्स, मतलब 36 इंटू 1 माइनस 20 आएगा. ओके, सो व्हाट विल बी दिस f ऑफ 1. तो f ऑफ 1 यू आर गेटिंग, इट इज इक्वल टू, ये 2 आएगा, ये 21 आएगा, ये 36 आएगा माइनस 20. ओके, so 36 minus 20 and total it is equal to how much. See here, this is 16 आएगा. ओके, हाँ, तो ये -5 और ये 2, so -3 आएगा. ओके, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या मिल रहा है आपको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू हाउ मच, -3. और वो मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर मिल रहा है आपको, x इज इक्वल टू 1 पे मिल रहा है. अब हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 6 व्हाट वी आर गेटिंग. सो f2 डैश ऑफ, देखो f2 डैश ऑफ 6 क्या मिल रहा है आपको, ये है हमारा f2 डैश. तो इट इज 12 इंटू 6 माइनस 42 विच इज 72 माइनस 42 और ये फॉर्चुनेटली 30 ही आ रहा है. इधर -30 आ रहा था, यहाँ पे 30 आ रहा है, लेकिन प्लस आ रहा है, प्लस 30 विच इज ग्रेटर दैन 0. दैट मीन्स व्हाट, ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यू आर गेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, येस इट इज पॉजिटिव. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिल रहा है पॉजिटिव. दैट मीन्स our function is what, having minima, therefore fx has minima at what point, at x is equal to 6. Why it is minima, because according to second order derivative test, second order derivative अगर पॉजिटिव है तो it has minima. मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है आपको. ओके, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f इज एट x इज इक्वल टू 6. तो जो फंक्शन है वहाँ पे हम x इज इक्वल टू 6 रखना है. 2 6 क्यूब 21 x स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर 36 इंटू 6 आएगा -20. ठीक है, हाँ, तो इसका वैल्यू अब हमें फाइंड करना है.
what will be the value of this. Here इसको हम ग्रुप भी कर सकते हैं. ये 6 क्यूब आएगा और ये 2 6 क्यूब, मतलब 3 इंटू 6 क्यूब, 2 और ये 1, मतलब 3 इंटू 6 क्यूब. ओके, दैट इज इक्वल टू 216 माइनस, ठीक है, 20 और ये माइनस 36 इंटू 21. तो हमें इसको कैलकुलेट करना है, विच इज 648 माइनस 20 और ये 6 आएगा 12 और ये 15, 5 1 6 और ये 7. हाँ, so it is equal to how much? This is equal to 628. इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. It is equal to how much? 628 minus 756. So it is equal to, माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, ये 8, ठीक है ना, 8, 2 आएगा 2 और ये 1, माइनस 128. हो सकता है इसमें आप कैलकुलेशन में कुछ रॉन्ग भी हो सकता है, बट आई एम श्योर दैट माइनस 128 और ये माइनस 3. तो क्लियरली मिनिमम वैल्यू ये है माइनस 128 और ये मैक्सिमम वैल्यू है माइनस 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू. An open box is to be cut out of piece of square cardboard of side 18 cm by cutting of equal squares from corners and turning up sides. Find maximum volume of box. So a box is constructed. Okay, ये square cardboard है, ये वाला स्क्वायर कार्डबोर्ड है. इस स्क्वायर कार्डबोर्ड के हम जो कॉर्नर्स है इसको हम कट करते हैं. ये कॉर्नर्स जो है ये इक्वल साइड पे कट करते हैं. ओके, इक्वल साइड पे कट करते हैं. और लेट ये साइड है x, ये x है, ये x है, ये x है, चारों तरफ x है. और ये पूरा जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ कितना है? 18 है. तो अगर इसको हम x सेंटीमीटर और ये x सेंटीमीटर अगर कट करते दोनों साइड में, तो टोटल 2x कट हो जाएगा. तो जो रिमेनिंग साइड है ये 18 माइनस कितना होगा? इट विल बी 18 माइनस 2x मिलेगा. बेटा यहाँ पे भी 18 माइनस 2x मिलेगा, हियर आल्सो 18 माइनस 2x मिलेगा. अब इसे ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको फोल्ड करके हम इसका बॉक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं. ये बॉक्स हमने कंस्ट्रक्ट किया. ओके, एंड ओपन बॉक्स इज टू बी, ओके, एंड ओपन बॉक्स इज टू बी कट आउट ऑफ पीस ऑफ अ स्क्वायर कार्डबोर्ड एट दिस. एंड ये ऐसा हम बॉक्स बनाया हमने इससे. Here this is the box, ये बॉक्स है. अब ये बॉक्स के जो बेस जो है ये है 18 माइनस 2x. ओके, ये स्क्वायर बेस है. ओके, ये स्क्वायर बेस होगा और इसका हाइट जो है ये x होगा. ये इतना साइड हमने टर्न किया तो ये x होगा. सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ, सी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स यू हैव टू फाइंड. ये बॉक्स है, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है. तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. सो व्हाट इज एरिया ऑफ बेस? तो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस होगा 18 माइनस 2x. यह स्क्वायर बेस है तो इसका स्क्वायर होगा
और हाइट है x, दिस इज द वॉल्यूम. हाँ, सो वॉल्यूम v इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम v इज इक्वल टू व्हाट, x इंटू, यहाँ से हम 2 बाहर लेते हैं तो 4 लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट 4, ठीक है, 2 बाहर लेने पर 9 माइनस x होल स्क्वायर, ठीक है. सो इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4x और ये 81 माइनस 18x माइनस x स्क्वायर, ठीक है. दिस इज 4 टाइम्स 81x, 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर माइनस x क्यूब आएगा, दैट इज अ वॉल्यूम. अब इन्हें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, इसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो लेट्स फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. dv बाय dx फाइंड करना है. dv बाय dx फाइंड करेंगे हम 81 माइनस 36x, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 3x स्क्वायर, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर at v maximum dv by dx is equal to what, 0. Therefore 4 times 81 minus 36x 3x square, ठीक है, it is equal to 0. इसका मतलब 81 माइनस 36x 3x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है. यहाँ से हम -3 कॉमन ले सकते हैं. सो व्हाट आंसर विल गेट, x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12x माइनस, ओके, 27 दैट इज इक्वल टू 0. हमें x फाइंड करना है. ये -3 कैनॉट बी 0, तो x, हाँ, -27, देखो, -27 9 और 3 ये फैक्टर्स है, ओके, माइनस इट इज सो इट विल बी, कहाँ पे रॉन्ग हुआ है, दैट इज 81 माइनस 36, ये हमने -3 कॉमन लिया है यहाँ पर, so it will be this. Here we committed mistake over here. इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया हमने, या तो प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ओके, हाँ. सो dv बाई dx इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पर प्लस होगा, हाँ. तो अब इसे देन हियर दिस भी इक्वेट विथ 0, 4 तो 0 नहीं होगा, यहाँ से 3 भी कॉमन ले सकते हैं हम. 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 0. मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 0. हाँ, अब प्लस 27 के दो फैक्टर्स 9 और 3, ओके, दैट इज -9 और -3. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ओवर हियर, x minus 3 और x minus 9, that is equal to 0. So you should get x either equal to 3 or equal to 9, but x is equal to 9 नहीं हो सकता, क्योंकि
यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 9 लिया हमने तो ये 2 इंटू 9 इज 18 और ये 0 होगा, वॉल्यूम विल बी 0. वी वांट मैक्सिमम वॉल्यूम. सो हियर वी कैन से x कैनॉट बी इक्वल टू 9, देयरफॉर x मस्ट बी इक्वल टू 3. ओके, अभी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब सेकेंड ऑर्डर फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है. So we will find here second order derivative. Dv by dx is this. We will find here second order derivative. D square v by dx square is equal to what? 4 into 18 का 81 का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस 36 इंटू एक्स प्लस 6x आएगा. डी स्क्वेयर वी बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वॉट? 4 इंटू माइनस 36 प्लस 6x स्क्वेयर x. ओके, एट वॉट? x इज इक्वल टू 3. डी स्क्वेयर वी बाय डी एक्स स्क्वेयर एट x इज इक्वल टू 3 कितना आएगा? is 4 into minus 36 plus 6 into 3, 18. Okay, it is 4 into minus 18. ये 18 और ये minus 36. Okay, so it is equal to minus of 72 आएगा, minus of 72, and which is negative, less than 0. Okay, therefore v is what? Maximum. V is maximum at what? x is equal to 3. तो हमें मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है. सो हाउ टू गेट मैक्सिमम वॉल्यूम? हियर ये वॉल्यूम है ये, सो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है. सो वेयर यू विल गेट अ मैक्सिमम वॉल्यूम? Maximum volume you will get at x is equal to what? Where we will get maximum volume at x is equal to 3. So therefore maximum volume v is equal to 3 into x के बदले हम 3 रखते हैं, 9 minus 3 whole square which is 12 into ये 3 आएगा, 3 square is 9. Okay, maximum volume is equal to how much? Maximum volume you will get, this is 12 इंटू ये आएगा 6, 6 स्क्वायर इज 36, ये आएगा मल्टीप्लिकेशन 36. ओके, 72, सो 7 आएगा, 36 प्लस 7. ओके, इट इज हाउ मच? इट इज 43. ओके, so it is cubic centimeter. That is the maximum volume. Okay, (432 cubic centimeter will be the volume, maximum volume. So yes dear students, we have covered all these examples. Thank you for watching this video.